Good morning, students. From today again, we are going to start our classes, and in this session till 3rd of July, we'll be focusing on history and political science. And now we are going to start the 8th chapter, which is peasants, zamindars, and the state. Now, these last two chapters in the second book, peasants, zamindar, and the state, and the chapter number 9, which is the Mughals chronicles and all. Now, both these chapters, they both are related to the Mughal period. In the first part, we are going to study about the agrarian society, about the village life, about the agriculture and the relationship between the state, and the importance of agriculture. You can realize from the fact that 85% of the people in those days were directly or indirectly dependent on agriculture. So that was the main source of revenue. That is why it is important. Now, what is the period we are talking about? This chapter, which we are going to study, is from the period of 16th to 17th century. That is the time period when Mughals were ruling India. And they had devised a good system of governance. They had everything properly planned out, even their taxation system, the revenue collection system, and that is what we are going to learn here also. Okay. Now, the period that we are talking about is 16th to 17th century. That is the Mughal period. Okay, so we are not studying the agrarian society as a whole in India. We are focusing in during this period what was happening in the rural society. Major source from where we have derived information. How do we get this information? Okay, about the architecture and about other buildings, those still exist. We can see them, watch them, and learn about them. But every time it happens, whenever we talk about history, we get a lot of sources and we get a lot of evidence about the elite people, about the kings and the ruling elite, but it's the common people we don't know much about. Okay, here also we'll try and learn about the rural society which existed at that time. तो उस समय की rural society कैसी थी उसके बारे में हम बेसिकली जानेंगे. हम मुगल पीरियड के बारे में पढ़ रहे हैं. ये दोनों ही चैप्टर्स जो है चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9 दोनों ही मुगल एरा के हैं. 16th एंड 17th सेंचुरी वो पीरियड है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे. हम जानेंगे कि उस समय जो एग्रीकल्चर था, जो एग्रेरियन सोसाइटी थी, जो विलेज लाइफ थी, वो कैसी थी, कैसे रेवेन्यू कलेक्शन होता था, कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो होती थी, इरिगेशन होता था नहीं होता था. ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. लोगों की जो कॉमन मैन जो कि गाँव में रहता था, विलेजेस में रहते थे, उनकी लाइफ कैसी थी, वो दे हैप्पी, डिड दे हैव इनफ सोर्सेस ऑफ लिविंग. ओके, और ये सारी चीज़ें हम डिराइव कहाँ से कर रहे हैं, हमें पता कैसे चल रहा है. उसके लिए जो मेजर सोर्स है, जो इस चैप्टर का एक तरीके से हम कह सकते हैं बेसिस है, जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो है मेजर सोर्स है क्रॉनिकल्स एंड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द मुगल कोर्ट. ओके, सो दीज मुगल रूलर्स, इनके कोर्ट्स में सिस्टम था, जो भी मशीनरी थी इनकी, कि कहाँ से कितना रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है, क्या सिस्टम है, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड की जाती थी, लिखी जाती थी. स्पेशली अबुल फजल, ये कोर्ट के राइटर थे, और इन्होंने अकबर के समय में एन ए अकबरी लिखी थी. इस एन ए अकबरी में इंडियन रूरल सोसाइटी उस समय जो थी उसके काफ़ी डिटेल में डिस्क्रिप्शंस हैं. ओके, सो लेट अस बिगिन दिस चैप्टर. फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड that during the 16th and the 17th century, ये मुगल पीरियड की बात कर रहे हैं, उस समय कितनी पॉपुलेशन विलेजेस में रहती थी? 85% ऑफ द पॉपुलेशन. सो अ मेजर चंक ऑफ द पॉपुलेशन. ओके, वी कैन से जो भी मेल पॉपुलेशन थी 85%, दिस पॉपुलेशन स्टेड इन विलेजेस. So 85% of population of India lived in villages, and if they lived in villages, तो villages में एक ही चीज़ होती है मेन जिस पे वो रिलाई करते होंगे, और वो है एग्रीकल्चर. तो 85% villages में रहते ही नहीं थे. इसका एक और मतलब है कि these 85% of the people of India at that time were
डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, बोथ पीजेंट्स फार्मर्स जो थे एंड द लैंडेड एलिट्स। लैंडेड एलिट्स ये अपर क्लास, एलिट का मतलब होता है अपर क्लास, लैंडेड मीन्स जिनके पास ज़मीन हो। इन शॉर्ट जिन्हें हम एक पॉपुलर नेम से जानते हैं ज़मींदार। ओके, तो जो ज़मींदार हैं और जो किसान हैं ये 85% की वो पॉपुलेशन थी जो कि गांव में रहती थी। इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड क्लेम राइट्स टू अ शेयर ऑफ द प्रोड्यूस। तो दो तरह की कम्युनिटीज इन्वॉल्व थी एग्रीकल्चर में, एक थे ज़मींदार और एक थे पीजेंट्स, किसान। नाउ पीजेंट्स ऑब्वियसली वो डायरेक्टली इन्वॉल्व, ओके, बट ज़मींदार भी नो कि वो खुद तो खेती नहीं करते थे, बट येस उनका बहुत बड़ा रोल है इसमें, एंड हाउ दे वर इन्वॉल्व वो हम जानेंगे। बट बिफोर वी मूव फर्दर लेट मी टेल यू दी नेम्स दैट यू माइट काउंटर इन दिस चैप्टर। यहाँ पर कुछ टर्म्स आएंगे जो कि विलेजर्स के लिए, फार्मर्स के लिए यूज़ किए गए हैं, ओके, एंड दोज नेम्स आर, एक है रियाया। रियाया इज द प्लूरल, इनफैक्ट रियायत तो वो किसान के लिए एक वर्ड यूज़ किया गया है रियायत, ओके, या फिर उसे उर्दू वर्ड जो उस समय पॉपुलर था वो था मुजारिया। तो मुजारिया मीन्स हम एक फार्मर के लिए मुजारिया वर्ड या रियाया वर्ड, रियायत वर्ड यूज़ करते थे, ओके। किसान तो पॉपुलरली यूज़ होता है, चाहे हिंदी वर्ड, किसान और असमी, ओके। तो ये 4 नेम्स हमें याद रखने हैं, रियायत, ओके, किसान, असमी या फिर मुजारिया। रियायत मुजारिया एक ही बात है, फिर किसान, असमी, मुजारिया, रियायत, ये चारों जो वर्ड हैं इन चारों का मतलब है फार्मर, पीजेंट्स, ओके। तो अलग अलग टर्म्स हैं क्योंकि अलग अलग एरा में अलग अलग वर्ड्स यूज हुए हैं, सो यू डोंट हैव टू कंफ्यूज कि ये रियाया कौन है, ये मुजारिया कौन है, या फिर ये किसान और असमी क्या ये अलग अलग है। नो, दे आर वन एंड द सेम थिंग। ये किसानों के लिए ही ये वर्ड्स यूज किए गए। तो ये 4 टर्म्स हैं दैट यू हैव टू रिमेंबर, ये आपके चैप्टर में है, सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ओके। ना उस समय की जो रूरल सोसाइटी थी उसमें थे ये पीजेंट्स और लैंडेड एलिट्स। दिस क्रिएटेड रिलेशनशिप, और इनमें रिलेशनशिप कैसा था, इनमें रिलेशनशिप कोऑपरेशन का भी था। कोऑपरेशन, व्हाई दे यूज्ड टू कोऑपरेट, बिकॉज ज़मींदार, these landed elites were dependent on the peasants। अगर peasants खेती नहीं करेंगे तो ज़मींदार को फिर कुछ भी अर्निंग नहीं होगी, क्योंकि वो खुद तो obviously he is not tilling the land and his land is being tilled by the peasants, okay, so there is a cooperation between them। अगर peasants को कोई ज़रूरत है, if they require some money or some help, obviously it was the ज़मींदार जिनसे वो हेल्प लेते थे। देयर वाज कोऑपरेशन ऑन बोथ साइड्स। हम देख रहे हैं कि ज़मींदार कोऑपरेट करते थे पीजेंट्स के साथ और पीजेंट्स कोऑपरेट करते थे ज़मींदार के साथ। अगर हमेशा कोऑपरेशन हो ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो कोऑपरेशन था, लेकिन कोऑपरेशन के साथ साथ कंपटीशन भी था एंड कन्फ्लिक्ट अमंग देम। समटाइम्स दे यूज्ड टू ऑब्वियसली फाइट आल्सो, कन्फ्लिक्ट भी था उनके बीच में, ओके। द सम ऑफ दिस एग्रेरियन रिलेशनशिप, और इन सब को हम उस समय की जो रूरल सोसाइटी है वो इन्हीं सब चीज़ों से बनी हुई थी, ओके। किसान, ज़मींदार, उनके बीच का कोऑपरेशन, उनके बीच की लड़ाइयाँ, कॉन्फ्लिक्ट जैसे हम कहेंगे, या उनके बीच की कंपटीशन, ओके। तो ये उस समय का एग्रेरियन सोसाइटी थी इंडिया की। एट द सेम टाइम इसमें इन दोनों प्लेयर्स के अलावा कौन कौन, पीजेंट्स एंड ज़मींदार, जिन्हें लैंडेड एलिट्स कहा गया है, इनके अलावा एक और थर्ड का भी बहुत बड़ा रोल है, इनफैक्ट सबसे बड़ा रोल है, और वो है मुगल स्टेट। जो शासन कर रहे हैं, जो रूलर्स हैं, किंग, ओके। बिकॉज चाहे फसल कोई भी ग्रो करे, चाहे कोई भी उसे ग्रो करवाए, बट अ शेयर हैज़ टू गो टू दी रूलर इनफैक्ट। तो जो किंग्स हैं उनका अपना एक शेयर होना ज़रूरी है इसमें, क्योंकि यहीं से रेवेन्यू आएगा। जब 85% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं और किसी भी राजा को मजबूत होना है, उसके पैसे की जो ज़रूरत है जो पूरी होगी वो यहीं से होगी, तो उसका एक रेवेन्यू कलेक्शन यहीं से आएगा। एट द सेम टाइम एजेंसीज फ्रॉम आउटसाइड ऑल्सो एंटर्ड इनटू द रूरल वर्ल्ड। ना आउटसाइड का मतलब ये कोई बाहर से नहीं है, यहाँ पे आउटसाइड से मतलब है गाँव के बाहर से। और कौन लोग थे जो कि इन्वॉल्व थे उसमें,
और वो था मुगल स्टेट, विच डिराइव बल्क ऑफ इट्स इनकम। उनका और भी इनकम आता होगा ट्रेड वगैरह से, बट जो मेन इनकम है, बिकॉज 85% लोग रह रहे हैं गांव में और दे आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, मेन एक्टिविटी एग्रीकल्चर है, तो मेन रेवेन्यू भी वहीं से आएगा। सो रेवेन्यू इसमें एजेंट्स थे स्टेट के, डायरेक्टली किंग तो नहीं जाएंगे गांव में, ओके। तो उसमें जो जैसे अभी होते हैं रेवेन्यू कलेक्टर्स होते हैं, कई सारे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कौन कौन इन्वॉल्व थे, तो ये एजेंट्स कौन कौन थे स्टेट के। इसमें थे रेवेन्यू असेसर्स। पहले रेवेन्यू असेस किया जाता था, इसको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, बट रेवेन्यू को असेस करना ज़रूरी था कि आपके पास इतनी ज़मीन है तो आपका रेवेन्यू एक्चुअल में होता कितना है, आपकी फसल कितनी हुई है, उसके हिसाब से आपका कैलकुलेट होगा कि हाउ मच रेवेन्यू यू आर सपोज टू डिपॉजिट, ओके। इनके अलग अलग नाम है, आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू। आगे चैप्टर्स में वो नाम भी हम पढ़ेंगे कि रेवेन्यू असेसर आता था, वो रेवेन्यू को असेस करता था कि आपको इतना टैक्स जमा करना है, ओके। उसे ये काम था रेवेन्यू असेसर का। फिर उस टैक्स को, उस रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए कोई और आता था और वो होते थे कलेक्टर्स, जो कि उसको एक्चुअल में कलेक्ट करते थे। तो पहले कोई आएगा, कैलकुलेट करेगा, बताएगा किसान को कि आपको इतना जमा करना है, फिर बाद में कलेक्टर्स आएंगे और उतना अमाउंट लेकर जाएंगे। एंड फिर एक और थर्ड है जो कि इन सब का हिसाब किताब रिकॉर्ड कीपर्स करते थे। तो एजेंट्स जो है स्टेट की वो 3 तरह के हैं, 3 तरह की टीम्स हैं। एक है वो जो कि रेवेन्यू असेसर है, रेवेन्यू को असेस करेंगे। असेस का मतलब है हिसाब किताब लगाना कि आपका कितना टैक्स बनता है, ओके। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करते हैं आज के डेट में, ओके। तो रेवेन्यू असेसर्स होते हैं। उसके बाद फिर रोल आता है कलेक्टर्स का, जो कि फाइनली आकर उसे कलेक्ट करेंगे। एंड थर्ड जो टीम होगी वो होगी रिकॉर्ड कीपर्स की, जो कि इनका रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे कि किसने किस साल में कितना दिया, ओके। तो वो ये 3 तरह के स्टेट ऑफिशियल्स हुआ करते थे जो कि इन्वॉल्व थे इस पूरे सिस्टम में कि कैसे रेवेन्यू को कलेक्ट किया जाएगा। दे सॉट टू कंट्रोल रूरल सोसाइटी सो एज टू इंश्योर, और इन्हीं का रोल होता था कि ये 3 चीज़ें इंश्योर करते थे। तो स्टेट, इनफैक्ट मुगल स्टेट जो रूलर है उसका क्या काम है, ही हैज़ टू इंश्योर दैट फर्स्टली ये जो एने अकबरी में क्या क्या किया गया है उसके बारे में है कि टेक्स्ट क्या क्या रिकॉर्ड करता है, टेक्स्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। फर्स्टली इट रिकॉर्डेड द अरेंजमेंट्स मेड बाय द स्टेट टू इंश्योर कल्टीवेशन, ओके। इम्पॉर्टेंट है कि एने अकबरी में ही बताया गया है कि क्या क्या अरेंजमेंट्स मुगल स्टेट की तरफ से किए जाते थे कि जिससे कि कल्टीवेशन हो सके। सपोज देयर इज नो वाटर समवेयर, इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, तो प्रोबेबली दे वर प्रोवाइडिंग इरिगेशन फैसिलिटीज, और क्या क्या वो अरेंजमेंट्स ऐसे करते थे जिससे कि कल्टीवेशन पॉसिबल हो पाए। सेकेंड वाज टू इनेबल रेवेन्यू कलेक्शन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि किस तरह से रेवेन्यू को कलेक्ट किया जाए। वो सिस्टम हम पढ़ रहे थे कि पहले एसेसर होता था, वो जाता था, बताता था कि कितना कलेक्ट करना है, एंड देन कलेक्टर्स यूज्ड टू गो, एंड थर्ड वाज द रिकॉर्ड कीपर्स, ओके। रेगुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड द जमींदार्स, और किस तरह से ये रिलेशनशिप मेंटेन होती थी जमींदार और स्टेट के बीच में। एने अकबरी इन 3 चीज़ों के बारे में हमें बताती है। तो यहाँ पर हम रूरल सोसाइटी की बात कर रहे थे, और रूरल सोसाइटी में हमने देखा कि कल्टीवेशन टुक प्लेस एंड स्टेट गॉट इट्स रेगुलर शेयर ऑफ टैक्सेस। ये इंश्योर करते थे कि लगातार एग्रीकल्चर नहीं होने से केवल वहाँ पर रह रहे लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा, केवल वहाँ ये इससे केवल किसानों की लाइफ इफेक्ट नहीं होगी, केवल ज़मींदार की लाइफ इफेक्ट नहीं होगी, इससे जो मुगल स्टेट है, जो गवर्नमेंट को, जो शासन को जो पैसा आना है वो पैसा भी नहीं आएगा। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द मुगल स्टेट टू इंश्योर कि कल्टीवेशन लगातार होती रहे। सिंस मैनी क्रॉप्स वर ग्रोन फॉर सेल, ज़्यादातर क्रॉप्स हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सेल के लिए भी क्रॉप्स को ग्रो किया जाता था। ट्रेड, मनी एंड मार्केट्स एंटर्ड द विलेजेस एंड लिंक द एग्रीकल्चरल एरियाज विद द टाउन्स। पहले रूरल सोसाइटी एंड अर्बन सोसाइटी बहुत ही कम हुआ करती थी, बहुत ही कम शहर हुआ करते थे, लेकिन इनमें काफ़ी अलग थे ये, ओके।
विलेजर्स वो अपनी फसल उगाते थे, खुद ही कंज्यूम करते थे, जिसे हम सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर कहते हैं। लेकिन फिर विलेजर्स की ज़रूरतें बढ़ती रहीं और उन्होंने ऐसी फसलें करनी शुरू कर दी और उन फसलों को बेचना शुरू कर दिया और वो पहुंचने लगी शहरों में। शहरों के लोग आने लगे गांव में, वहाँ से वो फसल को खरीद के ले जाते थे और उसे शहर में बेचते थे। तो इसमें हम देखते हैं रूरल सोसाइटी में एक और की एंट्री हो जाती है, वो है ट्रेडर्स, व्यापारी जो आएंगे गांव में और वहाँ से उस फसल को खरीद कर ले जाएंगे एंड फाइनली उसे सेल करेंगे टाउन्स एंड सिटीज़ में। ओके, सो वी आर सीइंग हाउ मेनी पीपल आर इन्वॉल्व इन दिस रूरल सोसाइटी। पीजेंट्स वहीं पर रह रहे हैं, खेती करते हैं, वो है लैंडेड एलिट्स हैं जिनकी ज़मींदार है, ज़मीन है, ज़मींदार हैं, वो है इस रूरल सोसाइटी में इन्वॉल्व। मुगल स्टेट इन्वॉल्व है और मुगल स्टेट कैसे इन्वॉल्व है? अपने इन 3 टीम्स के ज़रिए, जो एसेस करता है एसेसर, जो कलेक्टर है जो कलेक्ट करेंगे, एंड रिकॉर्ड कीपर्स, ये भी गांव में आते हैं, इनका भी रोल है रूरल सोसाइटी में। एंड फोर्थ हम देख रहे हैं यहाँ पे रोल है उन ट्रेडर्स का, उन एजेंट्स का जो उन फसलों को खरीद कर ले जाते हैं शहर में बेचने के लिए। ओके, जो इनफैक्ट जो मनी, जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है उनके विलेजेस को, उसको भी पूरा करते हैं वो। ओके, तो इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। पीजेंट्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, द बेसिक यूनिट ऑफ एग्रीकल्चर, जो बेसिक यूनिट है जो एग्रीकल्चरल सोसाइटी की, वो हम देखते हैं वो कौन है? वो है विलेज। तो विलेज इज द बेसिक यूनिट एग्रीकल्चरल जो सोसाइटी है, जो रूरल सोसाइटी है, उसका जो बेसिक यूनिट है वो है विलेज। और विलेज में कौन रहता है? विलेज इज इनहेबिटेड बाय पीजेंट्स हु परफॉर्म द मैनीफोल्ड सीजनल टास्क दैट मेड अप एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन थ्रू आउट द ईयर। तो यहाँ इसमें रहते हैं किसान, और ये किसान क्या करते हैं? वो सारा खेती से रिलेटेड काम करते हैं, जैसे टिलिंग द सॉइल, खेतों को जोतना, सोइंग सीड्स, बीज डालना, हार्वेस्टिंग द क्रॉप, फसल जब राइप हो जाती है उसे काटना। फर्दर दे कंट्रीब्यूटेड द लेबर। इसके अलावा वो एक और काम करते थे कि वो ऐसे एग्रो बेस्ड जो काम होते हैं कि सपोज आफ्टर मस्टर्ड हैज़ बीन ग्रोन, उससे ऑयल भी निकाला जाएगा, तो उसके ऑयल प्रोडक्शन में भी वो लेबर प्रोवाइड करेंगे। ओके, सो जो भी एग्रीकल्चरल जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हम कह सकते हैं आज के टर्म में, जो वर्ड यूज होता है, जैसे शुगर, तो शुगर इंडस्ट्री क्या है? वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। तो उस समय भी शुगर केन से शुगर बनती होगी। इनफैक्ट शुगर नहीं है तो व्हाट वी कॉल गुड़, जैगरी, ओके, तो उसको बनाया जाता होगा। लेकिन जैगरी बनाने के लिए लेबर की जरूरत पड़ती होगी, तो ये लेबर कहाँ से आती थी? वो भी यही पीजेंट्स हुआ करते थे। ओके, सो पीजेंट्स एक तो वो खेतों में काम करते ही थे, प्लस दे ऑल्सो यूज टू प्रोवाइड लेबर टू दीज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। Okay, industry is not the right word, industry we should not be using. Okay, तो यहाँ पे एग्रो बेस्ड गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए भी लेबर की जो जरूरत होती थी, वो भी ये पीजेंट्स ही प्रोवाइड करते थे। बट रूरल इंडिया वाज नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय सेटल्ड पीजेंट प्रोडक्शन अलोन। यहाँ पर सभी जो पीजेंट्स थे वो उसी विलेज में सेटल करके और उसी विलेज में खेती करते हों, ऐसा नहीं था। और हम देखेंगे कि 2 तरह के पीजेंट्स हुआ करते थे उसमें। ओके, नाउ बट रूरल इंडिया वाज नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय सेटल्ड पीजेंट प्रोडक्शन अलोन। यहाँ पर कुछ ऐसी ज़मीनें थी जैसे हिली एरियाज हैं या फॉरेस्टेड थे या फिर ड्राई एरियाज थे, यहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं था। तो सेवरल काइंड्स ऑफ एरियाज सच एज लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ ड्राई लैंड और हिली रीजन्स were not cultivable in the same way as the more fertile expanses of land। तो एग्रीकल्चर करने के जो तरीके थे वो अलग थे, जो जहाँ पे ज़्यादा फर्टाइल लैंड है उसका तरीका अलग है, और जहाँ पर हिली एरियाज हैं या फिर ड्राई लैंड है। ओके, इन एडिशन फॉरेस्ट एरियाज मेड अप ऑफ अ सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन ऑफ टेरिटरी। वी नीड टू कीप दिस वेरिड टोपोग्राफी इन माइंड व्हेन डिस्कसिंग एग्रेरियन सोसाइटी। नाउ यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो विलेजेस की हम बात कर रहे हैं और ये जो
एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, वी शुड नॉट फॉरगेट कि इसके अलावा भी इंडिया में उस समय बहुत कुछ था, जैसे कि वो फॉरेस्ट थे जहाँ पे प्रोबेबली फॉरेस्ट ड्वेलर्स रहते थे, वहाँ पे वो लोग अलग थे, उनकी लाइफ अलग थी, उनके तौर तरीके अलग थे। हिली एरियाज थे, ड्राई लैंड से जहाँ पर खेती नहीं होती थी, तो वो भी एक पार्ट था उस समय। लेकिन यहाँ पर हम उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, वी आर फोकसिंग ऑन रूरल सोसाइटी विच इज़ विलेज एंड द एग्रीकल्चरल एरिया। ओके, तो मतलब एक जस्ट पॉइंट है कि केवल वही लाइफ नहीं थी, उसके अलावा भी फॉरेस्ट भी थे, ड्राई लैंड भी थे, हिली एरिया भी थे। बट हमारा फोकस रहेगा उसी पर कि विलेज, पीजेंट्स, जमींदार, स्टेट, इनके बीच का रिलेशनशिप देखेंगे। लुकिंग फॉर सोर्सेस। ओके, तो सोर्सेस कहाँ से हमें ये सब पता चलेगा, वी हैव डिस्कस दैट। एंड इसके जो मेन जो सोर्स है वो है एन.ए. एक्वेरी, और जो बाकी डॉक्यूमेंट्स जो उस समय के रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट्स हैं, वहाँ से हमें इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन पता चलती है। ओके, सो आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्किंग ऑफ रूरल सोसाइटी does not come from those who work the land. Again we don't know, ये किसी पीजन ने नहीं बताया है या पीजेंट्स का कुछ लिखा हुआ नहीं है, बिकॉज पीजेंट्स डिड नॉट राइट अबाउट देमसेल्व्स। ये हमेशा होता है कि हम देखते हैं कि बिकॉज दे वर नॉट लिटरेट पीपल, और वो अपने बारे में कभी कुछ ज़्यादा लिख कर नहीं गए, इसलिए हमें उनके बारे में नहीं पता है। उनके बारे में जो हमें पता है वो है स्टेट के रिकॉर्ड से। मुगल स्टेट ने जो कुछ रिकॉर्ड किया, जो कुछ इस एन.ए. एक्वेरी जैसे टेक्स्ट में जो लिखा है, वहाँ से हम पता कर सकते हैं एक पीजन की लाइफ कैसी थी, विलेज रूरल सोसाइटी उस समय कैसी थी। ओके, आर मेजर सोर्स फॉर द एग्रेरियन हिस्ट्री ऑफ द 16th एंड अर्ली 17th सेंचुरीज आर क्रॉनिकल्स एंड क्रॉनिकल्स क्या होता है, क्रॉनिकल्स डेट वाइज सीक्वेंस वाइज जो लिखा जाता है उसे हम क्रॉनिकल्स कहते हैं। सो क्रॉनिकल्स एंड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द मुगल कोर्ट, इनके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में और पढ़ेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉनिकल है वो एन.ए. एक्वेरी है। इससे हमें अकबर के समय के बारे में, उनके रूल के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। इन शॉर्ट इसे एन भी कहा जाता है। ऑथर्ड बाय अकबर्स कोर्ट हिस्टोरियन, तो ये अकबर के कोर्ट में हिस्टोरियन थे। वो जो 9 रत्न के बारे में सुना होगा, उनमें से अबुल फजल भी एक थे, ये उनके हिस्टोरियन थे। ओके, एंड दिस टेक्स्ट मेटिकुलसली रिकॉर्डेड द अरेंजमेंट्स मेड बाय द स्टेट टू इंश्योर कल्टीवेशन। यहाँ पे उन सब चीज़ों के बारे में लिखा है कि क्या क्या इंतज़ाम किए गए मुगल स्टेट द्वारा कि कल्टीवेशन हो सके, फिर कैसे रेवेन्यू कलेक्ट हो सके, एंड किस तरह से ज़मींदार एंड स्टेट के रिलेशन को मेंटेन किया जाए। ये सब एन.ए. एक्वेरी में है। द सेंट्रल पर्पस ऑफ द एन, आखिर ये क्यों लिखवाया गया, इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था was to present a vision of Akbar's empire where social harmony was provided by a strong ruling class। यहाँ पे अकबर का प्रोबेबली मकसद ये था कि वो अपने समय के बारे में बता सके कि मेरे समय में मैंने कैसे रूल किया, किस तरह से हार्मनी थी, किस तरह से पीस थी, एंड सोसाइटी में एवरीथिंग वाज गुड एंड पीपल वर प्रॉस्परस। इसको रिफ्लेक्ट करने के लिए, जैसे भी कोई गवर्नमेंट, कोई सरकार एड्स बनाती है अपने अचीवमेंट्स के बारे में, हम इसी तरह से समझ सकते हैं कि एन.ए. एक्वेरी भी अकबर के रूल के बारे में जो मेन चीज़ें थी उसको उसमें रिकॉर्ड किया गया। ओके, सो द सेंट्रल पर्पस ऑफ द एन वाज टू प्रेजेंट अ विजन ऑफ अकबर्स एम्पायर where social harmony was provided by a strong ruling class. Any revolt or assertion of autonomous power against the Mughal state was in the eyes of the author of N predestined to fail। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, यहाँ पर मकसद ये है कि क्योंकि सब कुछ ठीक है, पीपल आर सेटिस्फाइड एंड देयर इज हार्मनी एंड पीस, इसीलिए कोई भी अगर रिवोल्ट करना चाहेगा मुगल रूलर के खिलाफ, अकबर की बात हो रही है, तो फिर वो फेल हो जाएगा। ओके, क्योंकि लोग उसका साथ नहीं देंगे, बिकॉज पीपल आर हैप्पी एंड व्हाई दे आर हैप्पी, वही सब चीज़ें एन.ए. एक्वेरी हमें बताती है। ओके, एनी रिवोल्ट, ओके, सो इन अदर वर्ड्स वट एवर वी लर्न फ्रॉम द एन.ए. एक्वेरी से जो हमें सीखने को मिलता है अबाउट पीजेंट्स रिमेन्स अ व्यू फ्रॉम द टॉप। तो हमें जो पीजेंट्स के लाइफ के बारे में जो जानकारी मिल रही है,
ये खुद पीजेंट्स द्वारा नहीं बताई गई है, ये हमें बता रहे हैं मुगल स्टेट के हिस्टोरियन अबुल फजल की किसान ऐसा था और इस तरह से रहता था। ये बात कितनी सच है ये थोड़ा मुश्किल होगा असेस करना, क्योंकि ये स्टेट की तरफ से लिखा गया है और अक्सर जैसा होता है कि एनी अकबरी में ये तो पॉसिबल है नहीं कि उसमें अकबर की ही बुराई की जाए या फिर सरकार अपनी ही खुद बुराई करे। तो ऑब्वियसली उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता चल पाएंगी रूरल सोसाइटी की। ओके, फॉर्चुनेटली हाउएवर द अकाउंट ऑफ द एन कैन बी सप्लीमेंटेड बाय डिस्क्रिप्शन, लेकिन एनी अकबरी में जो कुछ लिखा है क्या ये सही है? फॉर्चुनेटली हम इसको भी पता कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास और भी ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जिससे हम उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। ओके, और हमारे पास ऐसे कौन से रिकॉर्ड्स हैं? दीज इंक्लूड डिटेल्ड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, क्योंकि डिटेल्ड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं कहाँ के अवेलेबल हैं? गुजरात, महाराष्ट्र एंड राजस्थान, डेटिंग फ्रॉम 17th एंड 18th सेंचुरी। तो उस पीरियड के 16th-17th के नहीं लेकिन 17th-18th पीरियड के हमारे पास रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं जिससे हम ये क्रॉस चेक कर सकते हैं कि एनी अकबरी में जो लिखा गया है क्या वो सही है। एक्सक्यूज मी। ओके, सो फर्दर द एक्सटेंसिव रिकॉर्ड्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी रिकॉर्ड्स बनाए तो उनके रिकॉर्ड से भी चेक किया जा सकता है। एंड इनिशियली हम देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था वो ईस्टर्न साइड में था, बंगाल में था, तो वहाँ उनके जो रिकॉर्ड्स हैं वो उस एरिया के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के बारे में हमें पता चलता है। दे प्रोवाइड, तो ईस्ट इंडिया के जो रिकॉर्ड्स हैं दे प्रोवाइड अस विद यूजफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ एग्रेरियन रिलेशंस इन ईस्टर्न इंडिया, क्योंकि उनका रूल उस समय ईस्टर्न इंडिया में ही था। All these sources record instances of conflict between peasants, जमींदार and the state। और यहाँ पर हमें पता चलता है रिकॉर्ड से कि सब कुछ ठीक नहीं था। There was not total harmony and peace. There was a conflict between the जमींदार, the state and the peasants। Okay, एक दूसरे पे डिपेंडेंट थे, एक दूसरे के बिना उनका काम भी नहीं चलने वाला था, लेकिन फिर भी उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ करता था। ओके, in the process they give us an insight into peasants' perception and their experiences of fairness from the state, कि peasants उस सिस्टम से खुश थे या नहीं थे और उनकी क्या शिकायतें थी, उसके बारे में भी हमें थोड़ा बहुत आइडिया इनके रिकॉर्ड से लग सकता है। peasants की बात हमने की तो ये वर्ड्स आपको याद रखें that there are ये वर्ड्स यूज किए गए हैं मुजारिया एंड रियाया। ओके, रियाया प्लूरल है, रियायत सिंगुलर है, तो अगर हम एक किसान की बात करें तो रियायत वर्ड यूज करेंगे और कई किसानों की बात कर रहे हैं तो हम रियाया वर्ड यूज करेंगे, या फिर मुजारिया। तो ये वर्ड्स यूज होते थे किसान के लिए, एंड किसान वर्ड तो होता ही था एंड असमी। ओके, दो तरह के किसान हुआ करते थे उस समय, एक थे खुद काश्ता एंड एक थे पाही काश्ता। ओके, and these words peasants we can divide them into two groups, खुद काश्ता and पाही काश्ता। खुद काश्ता एज ए वर्ड सजेस्ट, खुद करना, वो किसान जो कि खुद अपने खेतों में खेती करते थे वो थे खुद काश्ता। एंड पीपल हु वर्कड ऑन अदर्स लैंड, किसी दूसरे के खेती पे जो काम करते थे वो थे पाही काश्ता। ओके, The former sources of the 17th century refer to two kinds of peasants की बात उन सोर्सेस में हमें पढ़ने को मिलती है। एक उन किसानों के बात हमें पता चलती है जो कि खुद काश्ता थे, जो कि खुद अपने खेतों में काम करते थे। दूसरे थे पाई काश्ता। The former were residents of the village। खुद काश्ता कौन थे? वो गांव में ही रहते थे एंड वहीं पर उनकी ज़मीन हुआ करती थी और उन्हीं पर वो खेती करते थे। ओके, The latter were non-resident cultivators। ये वो थे जो कि गांव में रहते थे लेकिन वो उनके गांव में खेती नहीं करते थे, वो कहीं और दूर जाकर खेती किया करते थे, वो non-resident cultivators थे। ओके, so the latter were non-resident cultivators who belonged to some other village। non-resident का मतलब होता है कि जहाँ पे ज़मीन, जहाँ पे वो खेती करने जाते थे वहाँ वो रहते नहीं थे, रहते कहीं और थे, खेती कहीं और करते थे। ऐसा वो क्यों करते थे उसका भी रीज़न है। Okay, who belong to some other village but cultivated land
एल्सवेयर ऑन अ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर वो कहीं और ज़मीन लेकर वहाँ पर खेती करते थे। वो ऐसा इसलिए भी करते थे कि कई बार टैक्स का बड़ा प्रॉब्लम होता होगा कि रेवेन्यू यहाँ पर बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, वहाँ कम देना पड़ेगा, इसलिए हम वहाँ पर खेती करेंगे जिससे कि रेवेन्यू कम देना पड़े, क्योंकि टैक्सेशन हर जगह पे सेम नहीं होगा। इसीलिए कम टैक्स की वजह से वो दूर जाकर कहीं किसी और ज़मीन पे खेती करना पसंद करते होंगे। सो पीपल बिकेम पाही कास्ता ईदर आउट ऑफ चॉइस, या तो वो अपनी मर्जी से पाही कास्ता हो जाते थे। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन टर्म्स ऑफ अ रेवेन्यू इन अ डिस्टेंट विलेज वर मोर फेवरेबल, उन्हें लगता था कि हम यहाँ गांव में जो ज़मीन है वहाँ खेती करेंगे तो ज़्यादा रेवेन्यू देना पड़ेगा, और कहीं दूर जाकर ज़मीन जो है वहाँ पर कम रेवेन्यू लग रहा है तो वो वहाँ जाके करते थे। वो चॉइस से करते थे, अपनी मर्जी से ऐसा करते थे, और कुछ लोग मजबूरी में ऐसा करते थे। तो पाही कास्ता जो पीजेंट्स थे, वो कई लोग तो अपनी चॉइस की वजह से वो गाँव के बाहर जाकर दूसरी जगह खेती करते थे, लेकिन कुछ पाही कास्ता ऐसे थे जो कि मजबूरी में करते थे। उनकी क्या मजबूरी थी? फॉर एग्जाम्पल, फोर्स्ड बाय इकोनॉमिक डिस्ट्रेस और बाय फैमिन, ओके, भूखमरी, गरीबी की वजह से वो पाही कास्ता हो जाते थे और उन्हें दूसरों के खेतों में काम करना पड़ता था मजबूरी में। ओके, तो ये दो तरह के किसान हुआ करते थे। फिर हम रीजन टू रीजन हम बात करेंगे कि कौन से रीजन्स में खेती अच्छी होती थी, इरिगेशन फैसिलिटीज़ कैसी थी, कितने क्रॉपिंग सीजन्स थे, कौन सी क्रॉप्स ग्रो हुआ करती थी, फील्ड्स को कैसे इरिगेट किया जाता था। ओके, so those things we'll be covering in the next chapter. Okay, I want to go a bit slow so that you are able to understand, and we'll be covering this chapter so that you don't have any kind of problem in understanding this chapter. Okay, so let us see. Our focus is on peasants, zamindars and the state in this session, but we can obviously move on to the next chapter also. But the important thing is that you understand every aspect of this chapter. Okay, so I'll leave this class here, and tomorrow I'll continue this class, and we'll try and learn about the crops and the irrigation facilities that existed at that time. Okay, so thank you. That's all in this class.